समझ में आया वो? Yeah. Okay, good. So yeah, that. So I'll just quickly walk through what was the content for the chemistry class yesterday, है ना? तो जैसे कि केमिस्ट्री में इट्स लाइक ऑर्गेनिक होगा फिजिकल केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक पढ़ना होगा आप लोग को, ठीक है? क्विक ये यूनिट्स आप लोग को पढ़ना है, कवर होगा, ठीक है? फिर इसके बाद states of matter, basic definitions, like I covered, right? And so what all matter is composed of, what is matter, yeah? Then I covered for macroscopic and what is macroscopic and pure substance mixtures. Just give me 1 second. Just give me 1 second. तो जैसे मैंने कल बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे जस्ट लाइक कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो मैटर को, ठीक है? फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। फिर एसआई यूनिट क्या होता है, आज फिजिक्स में भी आप लोगों ने कवर किया होगा एसआई यूनिट को, राइट? तो फिर मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम क्या होता है, फिर इंग्लिश सिस्टम में हमें क्यों क्या प्रॉब्लम्स आ गए, इतने सारे डायमेंशंस को रिमेंबर करना थोड़ा टफ था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए फिर एसआई यूनिट आया जो कि यस, तो इंग्लिश सिस्टम को फिर रिप्लेस हो गया फाइनली, एसआई यूनिट से रिप्लेस हो गया, ओके? तो ये एसआई यूनिट बेसिकली फंडामेंटल यूनिट था, शायद फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा आप लोगों को, राइट? कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसके बेस पे ही मतलब जो भी डिराइव्ड यूनिट्स बन रहे हैं वो इसके इन्हीं के बेस पे हैं, लाइक जस्ट लाइक वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, तो ये फंडामेंटल यूनिट पे बन रहे हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में कवर किया था, तो विदाउट स्लाइड तो नॉट श्योर कि कल समझ में आया था कि नहीं आया था, तो इसीलिए मैं जस्ट वॉक थ्रू कर रहा हूँ कि ये these are the fundamental units, okay? Now these ये कुछ रिलेशंस हैं, like 10 to the power minus 12 meter is one picometer, and you should know it, okay? This will help you, guys. So then what is the mass, weight and volume, and what is the unit of SI unit of mass, and this all thing you, and then what are you, like if I want to derive the SI unit of volume, so it's 1 meter cube. So so then I cover density and temperature, right? So as a unit of density, if I want to derive, so I can derive it, like derive that, this is called derived unit, okay? So second figure, I tried, I gone through that, right? Precise and accuracy. So can you tell what's the difference between precise and accuracy? Can you explain me? Manvi, can you explain what the difference between precise and accuracy? As given in the slide. Give an example, like a real-time example from. I want a real-time example of precise and accuracy. Sakshi, can you give example of precise and accuracy? Sakshi, can you give the example of precise and accuracy? Sakshi, can you hear me? Sakshi,
like some problem there. So hi Amrita. Okay, Prachi, can you give the example of precise and accuracy? The accuracy can be said as how precise can be said as how closer is the value to the true value, and accuracy is the accurate value. Yeah, but real time Just like example. मुझे रियल टाइम एग्जांपल जानना है कि वो क्या किस तरह से कैसे पता चले कोई वैल्यू बता, जैसे एग्जांपल लो 60 हो गया, मान लो जैसे अब एक वेट है 60 केजी, ठीक है, किसी का वेट है 60 केजी, तो नियर बाई वैल्यू अगर जैसे 59.8, 59.9 और 60.1, ये क्या है, ये एक्यूरेट है या प्रिसाइज है? Precise. प्रिसाइज है, ओके। एंड एक्यूरेट है कि नहीं है? Yes sir, it's accurate also. Okay, so it's accurate and precise both, you mean, right? Okay, and what about मान लो अगर 47 है और 47.1 है, 47.3 है, तब ये वैल्यू एक्यूरेट है या प्रिसाइज है? So it is precise but not accurate. Okay, and what about suppose अगर 45 है, 75 है और 85 है? Now just a second, anyone else can tell, like suppose 45, 85 or 75, is it accurate or precise? They are both not accurate nor precise. Okay, good, yeah, correct. So is it clear, right? Manvi, is it clear that what's accurate and what is precise? दोनों का अंतर पता चला कि accurate क्या है, precise क्या है? Yes sir. Yes sir. Okay, good. So people are joining still. So Rakesh, right? Rakesh, you join? राकेश, मेरा आवाज आ रहा है? राकेश, आवाज आ रहा है? Yes sir. ओके, राकेश, ये कल हम लोग कुछ कल तुमने ज्वाइन किया था कल का क्लास? नो सर, कल का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। ओके, ठीक है, तो ये कल मैंने कुछ पीडीएफ भेजा था, तो पीडीएफ फाइल देखा था? सर पीडीएफ देखा था मैंने। तो कुछ समझ में आया था? समझ में आया था? नो सर, उतने गौर से नहीं देखा, पढ़ा नहीं उसको, बस देखा एक पीडीएफ आया हुआ है। तो क्लास 11th में अब आगे हो तो अब स्टार्ट कर दो पढ़ाई, ठीक है, अब से, है ना? यस ये सर। पीडीएफ से पढ़ो पैरेलली, अपना जो सीबीएसई का जो है ना बुक, एनसीईआरटी का फिजिक्स का, मालूम के सभी बुक नहीं है। बोर्ड कौन से बोर्ड में अभी तुम? बोर्ड डिसाइड हो गया तुम्हारा 11th में कौन सा लेना है? सीबीएसई। सीबीएसई की फिजिक्स की बुक उठाओ, ठीक है, और उसको पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और ये क्लास अभी जो अभी मैं बता रहा था, ये सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह क्या होता है ना, किस तरह से ये क्या डिफरेंस होता है प्रिसाइज और एक्यूरेट में। ओके, तो प्रिसाइज और एक्यूरेट में होता क्या है कि मान लो अगर यहाँ पे अगर एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे सारे कोई एरो फेंकता है तो यहाँ पे पड़ता है तो टारगेट पे पहुंच, ये सपोज टारगेट है, दिस इज द टारगेट, ओके, तो दिस इज द टारगेट। तो टारगेट पे अगर कुछ हो रहा है, अ, हाँ, तो मैं कह रहा था कि टारगेट पे अगर कुछ तो सब कुछ ड्रॉप हो रहा है, तो आ रहा है, तो ये एक्यूरेट है। लेकिन अगर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो एक्यूरेट तो नहीं है। लेकिन अगर मान लो सपोज पूरा नियर बाई हो रहा है, ठीक है, सारे वैल्यू जो है वो नियर बाई हैं लेकिन टारगेट पे नहीं है, तो Precise. हाँ बोलो। Then it will be precise.
करेक्ट। तो यहाँ पे अगर टारगेट पे नहीं पहुंच रहा है स्टिल दे विल कॉल प्रिसाइज, और अगर टारगेट पे पहुंच रहा है और टारगेट पे सारा वैल्यूज मिल रहा है तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ठीक है। तो दिस इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ, ओके। एंड दिस इज ओनली, दिस इज नॉट एक्यूरेट बट दिस इज प्रिसाइज। पर अगर कोई वैल्यू इधर है, कोई वैल्यू इधर है, कोई वैल्यू इधर है, तो ये क्या होगा, ये नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ठीक है। Yes, सभी sir. क्लियर है एक्यूरेट और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस होता है? Yes, sir. राजेश, राकेश, इज इट क्लियर? Sir, one doubt. या टेल मी। So why it will be neither precise nor accurate? No. Then this the, one, sorry, the example you shown, no, that it will not nor be yes, तो precise एग्जांपल nor मैंने बताया था कि 60, मान लो अगर किसी तुम्हारा वेट 60 kg और अगर नियर बाई वैल्यूज मैं ले रहा हूँ 59.9, 59, 60.1, 60.2, ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ठीक है। टारगेट के बिल्कुल पास में है, मतलब तुम्हारा वेट 60 kg और मैंने वैल्यू बहुत क्लोज 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 वैल्यू लीजिए, राइट। तो ये एक्यूरेट भी है। आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? Are you able to hear me, Manvin, Prachi, and Shakshi? Are you all able to hear me? yes, sir. Sir, I have a doubt. Yeah, tell me. So what I think there should be any range for any value that it is accurate, and after that range it will be not accurate, it will be precise. Just ओके, तो यस करेक्ट, ऐसा हो सकता है कि रेंज इन द सेंस यू आर टॉकिंग कि अगर 49, सोनम गुप्ता बेवफा। you know who is it? Rakesh, you saw, हेलो सर। हेलो। yeah, who's speaking in between? Don't speak in between, okay? हेलो सर। Yeah, just a second. Sir, your voice is a bit not clear, sir. Your voice is not clear actually. Is it now clear? Is it now clear? Yes, sir. It's a bit clear. Okay. Manvin, and all, are you all able to hear me? Yes, sir. Okay. Now I'm unmuting all. In case you need any, if you have any query, then you can bring me. Okay. हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे टारगेट और तो हाँ, जो क्वेश्चन था तुम्हारा कि ये रेंज, राइट, रेंज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर सपोज वेट है 60 kg और 59 पॉइंट, अगर वन का डिफरेंस हो रहा है तो वी कैन से इट्स एक्यूरेट। बट अगर वन से ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो इट्स लाइक नॉट एक्यूरेट। पर ये अगेन डिपेंड करेगा कि तो सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। अब आ रहा है? हाँ अब हाँ सर, बेटर, ठीक से। कुछ बेटर है? हाँ हाँ सर, अब बेटर है। ओके। और सबके लिए बेटर, राइट? ऑल आर एबल टू हियर मी? Yes, sir. यस सर। ओके। तो सॉरी, अभी स्टिल आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, सही है। आ रहा है ना, ठीक है, गुड। तो अभी यहाँ पे मैं प्रिसाइज और एक्यूरेट का जो डेफिनेशन बता रहा था कि यहाँ पे अगर टारगेट आपका जैसे वेट है 60 kg और जो एग्जांपल बताया अब 45 है, एक वैल्यू 45 है, किसी का वेट है 60 kg और जो वैल्यू ऑप्शन जो मैं दे रहा हूँ 45 है, 75 है और 55 है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है और ये प्रिसाइज भी नहीं है ना। पॉइंट्स का अगर पॉइंट्स में अगर Precise भी नहीं है। सॉरी, फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? It's clear, right? So I'm going to next slide now. अब ये सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, ठीक है? जैसे अभी 15.4 एक नंबर है, ठीक है, प्लस माइनस, अगर इसमें मैं बोलता हूँ कि इसमें प्लस माइनस 0.1 ml का वेरिएशन हो सकता है,
दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन, दिस इज अनसर्टेनिटी। ओके, जैसे कभी कभी बोलते राइट कि एग्जैक्टली अब अगर कोई बोलेगा कि 60 kg का ही उसको चाहिए तो एग्जैक्ट नहीं Sir, होगा। again your voice is not clear, sir. Again my voice is not getting clear. Manvi and Anshul, are you all guys able to hear me? यस सर, आप Yes, वॉइस sir. क्लियर है। ओके, तो Clear. राकेश तुम्हारा मुझे लग रहा है इंटरनेट प्रॉब्लम कुछ होगा, मुझे लग रहा है ना? तो इसके Yes, लिए sir, मैं अभी ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है पैरेलली, तो रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? और Yes, स्टिल sir. अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे फोन करना, मैं फोन पे तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है? कोई भी डाउट्स हो मुझे फोन करना और मैं फोन पे तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है? Okay, sir. लेकिन डाउट्स को रखना नहीं, डाउट्स को अगर रखोगे तो आगे और प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो और डाउट्स को पूरा क्लियर करते चलो, ठीक है? तो यही मैं कह रहा था कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, यहाँ पे सर्टेनिटी है, और जो प्लस माइनस जो वेरिएशन हो रहा है उसको कहेंगे हम लोग अनसर्टेन है। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जैसे कल मैं बता रहा था, लेकिन विदाउट एनी स्लाइड्स में बताया तो शायद आप लोग एज्यूम नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पा रहे होगे कि जैसे मान लो ये एवोगाड्रो नंबर है, अब इसी में प्लस एक और एवोगाड्रो नंबर करना पड़े तो कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए फिर अगेन मास है तो पॉइंट में है, तो बहुत ज्यादा इतना लिखना टाइप करना मैनुअली, तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो इसी के लिए साइंटिफिक नोटेशन आया। साइंटिफिक नोटेशन में क्या हुआ कि n क्रॉस 10 की पावर n 10 टू द पावर n के फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ पे अगर मुझे इसको इस एवोगाड्रो नंबर को लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6.02 into 10 to power 23 सो मेनी टाइम्स, जीरो हमें नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन हम लोग ने यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है? फिर अब जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे पूरा जीरो, सो मेनी टाइम जीरो लिखना पड़ता, और सो मेनी टाइम यहाँ पे जीरो, ये क्या होता है, ये 1/10 टू पावर 6 हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे 10 टू पावर माइनस, इसको हम लोग 1/10 टू द पावर 6 को हम लोग 10 टू पावर -6 लिख सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आई नो यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट, बट यहाँ पे 10 की पावर में हम लोग 8 - 6 करेंगे और इसको दिस इनटू दिस करेंगे, ठीक है? साइंटिफिक नोटेशन में यूज करने से हमारा कॉम्प्लिकेटेड केस अब इजी गोइंग होने लगा, ठीक है? तो ये इसलिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज स्टार्ट हुआ। फिर अब जैसे अब ये 3.5 डिवाइडेड बाई 7 करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे 0.5 टू 10 टू पावर -9 आया, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या है, तो होता है n, ये मैंने क्या बताया था यहाँ पे n इंटू 10 टू पावर 9, n शुड बी सिंगल डिजिट, ओके? सो यहाँ पे सिंगल डिजिट, अब यहाँ पे तो देख रहे हैं कि ये क्या है, 0.5 है, इट्स नॉट अ डिजिट, पॉइंट से पहले कुछ नंबर आने का है, तो अब यहाँ पे तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू पावर -10, ओके? तो इस तरह से आई एम गोइंग बिट फास्ट बिकॉज ये सब मैंने कल बताया था, तो और दीज आर इजी थिंग्स, सो ठीक है, इट्स क्लियर, राइट? यहाँ पे Yes, sir. ओके No, sir. ओके, Sir, हाँ बोलो। I have a doubt that in division it is 3.5 into 10 to the power -3. ओके, So how it came 0.5 into 10 to the Yes, power so- -9? तो यहाँ पे जब डिवीजन जब करते हैं हम लोग, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इसको और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, 10 टू Add एडिशन करते हैं, add माइनस करते हैं। करते हैं, राइट? तो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट है, तो यहाँ पे देखो 3.5 डिवाइडेड बाय 7 सिंपल, राइट? 0.5, एंड दिस इज ये 10 टू पावर में इसको माइनस 10 टू पावर -9 हो गया। अब ये यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि ये सिंगल डिजिट होना चाहिए, तो सिंगल डिजिट के लिए क्या, हाँ Hello. हाँ Sir, I'm leaving this class as my network is not stable. I'll watch the video on YouTube only. श्योर राकेश, श्योर, ओके, फाइन, Yes, sir. Thank Yeah. you, sir. सर नो प्रॉब्लम, सर वो डीजे राकेश। okay, fine. So again, तुम्हारे इज इट क्लियर, राइट? Yes, sir. ओके, गुड। सो हियर अब एडिशन के केस में भी अब क्या करना है हमें, मान लो अगर इसको हमें एडिशन करना था तो क्या हमने कि यहाँ पे
यहाँ पे 10 to power 6 है, यहाँ पे क्या है 10 to power 5 है। तो 5 है। अब इसको मुझे 10 to power 6 बनाना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर मूव करेंगे, ठीक है, और इसको इधर पॉइंट को इधर मूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.153 into 10 to power 6। नाउ सिंपल एडिशन, दिस इज सिंपल एडिशन, 3.76 into 10 to power 6। इज इट क्लियर, राइट? Yes sir. गुड। So now Thank you. round off yesterday I was telling, right? So round off के लिए मैं क्या बताया था कि 0.578। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर इस राउंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर मुझे करना है तो क्या करना होगा, ये 7 जो कन्वर्ट हो जाएगा 8 में, राइट? 3.5, this will be 3.58। अगेन हियर दिस इज लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.33। लेकिन यहाँ पे क्या, इस केस में मैंने क्या बताया था कि अगर ये 5 है और ये इवन है, तो इवन के केस में ये इंक्रीज नहीं होगा, और अगर ये 5 है और ये ऑड है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, राइट? Yes sir. गुड। तो अगेन मैंने कल सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल बताया था, रूल में क्या था कि अगर यहाँ पे सपोज दिस इज 285, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट को काउंट करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन कमिंग टू रूल 2, whatever जीरो जो भी नॉन जीरो के पहले का आ रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो जीरो व्हाट दिस रूल से जीरो अगर जो इन बिटवीन वाला होता है उसको काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो गया 4, तो दिस इज रूल 3। अगेन कमिंग हियर लाइक जीरो एट द एंड ऑफ द राइट of the number are significant number. This will be countable. So again here this is zero at the end of number. What the rule that if it's अगर decimal के बाद आ रहा है जीरो तो फिर इसको काउंट होगा, अगर डेसिमल के बाद नहीं, अगर सिंपल विदाउट डेसिमल आ रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसलिए इसका हो गया 3 और इसका हो गया 1। इट्स क्लियर, राइट? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे पॉइंट अगर इसका देखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट के बाद यहाँ पे नॉन जीरो के बाद जो नंबर आता है उसको काउंट होगा और ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अगर कोई नंबर 2 है, मान लो एग्जैक्ट नंबर कोई 2 है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट के बाद जो जितने भी नंबर इन्फिनाइट तक जा सकता है तो ये इसका इन्फिनाइट होगा सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, तो ये रूल 5 था। कमिंग अगेन तो राउंड ऑफ रूल जो मैंने बताया था वो यहाँ पे इसका रूल्स है, सारे थंब रूल्स है। फिर डायमेंशन एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग इट, दैट 1 inch is equal to 2.54 centimeter suppose, then we can say that 1 inch upon 2.54 centimeter is equal to 1 and this is called unit factor। कभी इसको डायमेंशन चेंज करना है तो इसको ये हमेशा यूज होता है, ठीक है। अब सपोज अगर मुझे 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कैसे वो करोगे, इसको इस रूल को यूज करके कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको रूल को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब क्या बोलेंगे कि एज पर दिस रूल ये हम बोल सकते हैं, राइट, कि 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। अब हमें अगर मान लो अगर मैं पूछता हूँ कि 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो इस रूल को अगर हम यूज करके अप्लाई करेंगे, हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इस रूल को अगर हमें अप्लाई करने को अगर बोला जाए कैसे करोगे इस रूल को अप्लाई, यहाँ पे 10 मीटर अपॉन मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, राइट। तो मीटर आपको हटाना है, तो यहाँ पे करेंगे 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर 1 मीटर अपॉन हाँ करेक्ट 1000 होगा, लेकिन इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर यहाँ पे क्या होगा कि तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इस रूल को अगर अप्लाई करने के लिए कोई पूछता है, कोई बोलता है तो कैसे करोगे अप्लाई, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये पहले तो यूनिट फैक्टर पता होना चाहिए। यूनिट फैक्टर बोले तो 1 इंच इक्वल टू 2.554 सेंटीमीटर, तो 1 इंच अपॉन 2.4 इक्वल टू
1. ओके, तो अब ये अब हम बोल सकते हैं अब अगर सिमिलरली 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1. अब 10 मीटर को कन्वर्ट करना है तो मीटर को कट करना है, मीटर को हटाना है, तो यहाँ पे हमने 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1000. ठीक है, 1000 सेंटीमीटर. अब अगर मान लो अभी इसको इसी को मैं अभी एटॉमिक मास यूनिट में भी एक्सप्लेन करने में भी यूज करूंगा, इसी सेम डायमेंशन एनालिसिस को, तो अभी आगे यूज में आएगा. ठीक है, तो अब ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस. आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर नाउ. तो ये मैं जस्ट पास ऑन कर रहा हूँ. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो यहाँ तक तो मैंने यहाँ तक तो मैंने कवर कर दिया था. अब आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. शायद 10th में पढ़ा हो आपने, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो गए, है ना. लेकिन तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी, राइट, बहुत सारी. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये रिएक्टेंट होता है, राइट. तो सम ऑफ ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. तो ये प्रोडक्ट है, तो फिर होता क्या है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट. ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो अगर कोई भी रिएक्शन होता है, अभी इसके बेस से हम लोग मान लो अगर इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है ना, और इसका मास दिया हुआ है, तो बी का मास निकालना हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट, कि क्योंकि अगर ये रूल अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, so law of conservation of mass, what is said that mass of reactant after reaction it cannot be destroyed. Okay, so total mass of reactant is always equal to total mass of product. अब इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ. इसको सपोज दिस इज क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करना होगा, तो क्या होगा, कैसे करोगे, है ना. तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट produces 7.6 gram of carbon. Okay, and 12.4 gram of calcium oxide. तो अभी इसको हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये फॉलो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, तो रिएक्शन होती क्या है, तो इसमें रिएक्शन जो होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट. इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मास क्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ 20 ग्राम और इसका मास क्या दिया हुआ है 7.6 ग्राम. 12.4. करेक्ट, सॉरी. तो दिस इज कॉल्ड 12.4, दिस इज 7.6. तो ट्राई टू ऐड ऑल ऑफ देम. तो ये इसका क्या आएगा, दोनों का मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम आएगा. तो यही क्या है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. ठीक है, Yes sir. Clear, right? Okay, good. Now there is one question here. 1.5 gram of complete one ethane है, एक इथेन है. इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है. ठीक है, और ये इसका कंबशन हो रहा है, और कंबशन होके क्या बन रहा है, कंबशन आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग कि कोई भी कंबशन होता है तो ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वो क्या जो प्रोडक्ट देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है इथेन के केस में. ठीक है, और लेकिन अगर कोई और भी रिएक्टेंट होगा, तो कोई और भी अगर कंपाउंड होगा तो उसका कंबशन होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा उसका. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑल्सो. ओके, तो ये कंबशन जब होगा तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ रहा है. तो अब मुझे प्रूव करना है कि अगर यहाँ पे क्या प्रूव करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव करना है, राइट. तो अब यहाँ पे इसको आप पहले अपने एंड पे अगर आप ट्राई कर सकते हो, इसको सोचो एक बार कि कैसे करेंगे. ठीक है, कि यहाँ पे क्या करना है. अब जैसे मैंने इसमें क्या है, यहाँ पे 1.5 ग्राम ऑफ इथेन है. ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, x ग्राम है. ऑक्सीजन का मास बताया नहीं है, बोला नहीं इन्होंने क्या मास है. ठीक है,
नाउ अब हमें मान लो ऑक्सीजन का मास निकालना है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर, करेक्ट। तो अब यहाँ पे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, 1.5 प्लस x इक्वल टू 4.4 प्लस 2.7, राइट? जस्ट Yes, थिंक sir. कि इज इट करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने इसके यूजिंग दिस इक्वेशन वी फाउंड दैट ऑक्सीजन का मास 5.6 है। पर अब हमें प्रूव क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है क्या, इज इट फॉलोइंग? तो ये कैसे करोगे? अब इसके लिए क्या करोगे कि तुम्हें यहाँ पे क्या इसका 2 मोल है और इसका 7 मोल है ना, और ये 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 6 मोल वाटर दे रहा है। Water. तो अब इसके यूजिंग दिस these all data we will try to find again the mass of this oxygen. Okay, Oxygen. तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से हमने यहाँ पे फाइंड किया x इक्वल टू 5.6। अब डिफरेंट वे से हम लोग फाइंड करेंगे कि 5.6 अगर आ रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? तो यहाँ पे 1 मोल C2H6 is giving 1 mole of C2H6 consuming 7 mole of oxygen, ठीक है? 1 mole C2H6 consuming 7 mole of oxygen. तो इज इट करेक्ट? मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? अमृता, मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? हेलो, able to hear me? मानवीन, able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? 1 mole of C2H6 consuming 7 mole of O2. So it is 2 mole of C2H6. करेक्ट, यही मैं जानना चाह रहा था तुम लोग, ठीक है, कि ये क्या है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ C2H6 is consuming 7 mole of O2, करेक्ट? तो 1 mole will consume 7/2, राइट? Yes, sir. करेक्ट। और मुझे डेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, Ethane. ओके? तो 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, तो 1.5 ग्राम, इसको अगर मैं मोल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? इसको मैं मोल में कन्वर्ट कैसे, मोल आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? मोल में क्या होता है कि वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट? तो अगर मैं Yes, sir. इसको पहले हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है? C2H6 का मॉलिक्यूलर, C2H8 का मॉलिक्यूलर मास बताओ क्या होगा? You all guys calculate C2H8 का molecular mass. I'm giving you 1 minute to calculate the molecular mass of C2H8. इतना देर लग रहा है? Just think. You all need to think, okay? मानवीन सोचो जल्दी से। प्राची सोचो, Yes, sir. अमृता, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? I think So C2H8. yes, प्राची, C2H8 का molecular mass I क्या होगा, think जल्दी बताओ। 22. 22. Just think. कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है?
8. 8 होता है? नहीं 6. Oh, sorry. Wait. 6. नहीं, ये मैं चाह रहा हूँ। देखो कार- मतलब कि बेसिक्स अपना बहुत, इसीलिए मैंने बोला था 10th का बुक पढ़ना, ठीक है? 10th का ही तुम्हारा बेस है, ठीक है? एनीवे अगर बेस वीक में है तब भी स्टिल मैं सबको सबका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, ठीक है? तो कार सर C2H8 का मुझे मॉलिक्यूलर मास जल्दी से बताओ, सोच के बताओ, थिंक। यहाँ से भी बता सकते हो देख के यार, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे पूरा सॉल्व है, ठीक है? इस यहाँ से भी तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पिक करके 32. सेकंड्स। करेक्ट। प्राची समझ आया? No, sir. हाँ, No, sir. नो, ओके। और साक्षी तो म्यूट पे ही है ना? एनीवे ठीक है। तो कार्बन का देखो, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ठीक है? और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो कार्बन का 12 मतलब बोले तो ये C2H6 क्या हो जाएगा? 24। और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? 8। करेक्ट। ये क्या हो जाएगा? Yes, sir. Yes, 2 sir. into 12 plus हाँ 8 into 1। नहीं करेक्ट? हाँ, इज इट करेक्ट? Yes, sir. तो ये समझ आया ये क्या होता है? तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? ये बेसिक्स तो थोड़ा देखना है, समझ एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला हमने, यहाँ पे हो गया 32। लेकिन अब इसके केस में क्या था? C2H6 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे मोल कितने, अब मोल क्या होता है? मोल क्या होता है प्राची? मोल क्या होता है? 1/12 the weight of one carbon 12 atom. नहीं, Exactly. किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे? किसी भी मॉलिक्यूल का मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे? Mole. Aditya and who all joined? Rahul, right? Hi Rahul. Sir, I have a better number. No. Rahul, are you able to hear me? Adit, are you able to hear me? Who all joined just now? Can you all hear me? Rahul, Adit, आवाज आ रहा है मेरा? राहुल, आदित, आ रहा है आवाज मेरा? ठीक है, लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम है राहुल के। एनीवे तो मैं क्या बता रहा था? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? प्राची, नाउ इज इट क्लियर, राइट? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मोल क्या होता है? मोल के बारे में पूछ रहा था, राइट? मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का, जैसे देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है ना? ये अगर कोई रिएक्शन है यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है कि 2 मोल ऑफ C2H6, 7 मोल ऑफ O2, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल ऑफ वाटर, ठीक है? तो मोल जो होता है यहाँ पे, अगर मुझे निकालना है C2H6 का, अगर तुम्हें वेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1.5 ग्राम, ओके? तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, वेट ऑफ दिस एथेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है एथेन का? 30, राइट? तो मोल हो जाएगा 1.5 अपॉन 30। ये अब क्लियर है? मोल क्या होता है? हाँ,
Yes, sir. ओके ठीक है, ये जब तक, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब तक समझ नहीं आएगा तब तक पूछना मुझसे, ठीक है, क्योंकि इट शुड बी वेरी क्लियर, ओके, नहीं तो फिर आगे और प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आगे हम लोग चलेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो 2 मोल 2 मोल ऑफ इथेन और 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने पहले इसका निकाल लिया मोल, तो ये हो गया 1.5/30, है ना, तो ये मोल हो गया। अब मैं क्या बता रहा था यहाँ पे कि 2 मोल ऑफ इथेन 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है, तो 1.5 मोल ऑफ अपॉन 30 ये कितना ऑक्सीजन देगा बताओ। अब ये कौन प्राची बताएगी अब कि ये कितना मोल देगा 1.5 अपॉन 30। 2 मोल इज गिविंग मी 7 2 मोल इज गिविंग मी 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, 2 मोल is giving me 7 mole of oxygen, 1.5 upon 30 ये कितना ऑक्सीजन देगा बताओ प्राची, can I you tell me? think it will give the same हाँ amount. सेम अमाउंट क्यों? I think it will give. क्यों नहीं, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यूनिटी मेथड अप्लाई करो, यूनिटी मेथड पढ़ा होगा ना कि 2 मोल ऑफ इथेन 7 मोल दे रहा है, तो 1.5 अपॉन 30 मोल कितना देगा 7/2, राइट, 7/2 इंटू 1.5 अपॉन 30, यही होगा, राइट, Yes, sir. क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया 7/2 इंटू दिस इज इंटू मल्टीप्लीकेशन 1.5 अपॉन 30, तो ये कितना आ गया 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है, और कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा अभी नहीं समझ आया? Point 175. हाँ 0.175. हाँ वो जो भी वैल्यू है, लेकिन ये 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन देगा, ये समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ प्राची समझ आया? Yes, sir. ओके Sir, not fully clear. ठीक है, तो 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कोई बता सकते, जल्दी बता सकते हो? हाँ 16. कितना? ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, राइट, O2 का 16. मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 16. 16 इंटू 16 तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है ना, 16 इंटू 2 कितना हो गया 16 into 2. 32, ठीक है, क्लियर है। Yes. अब Yes, कुछ sir. Yes. तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पता है, इसका मोल तुमने निकाल लिया है, तो अब तुम्हारा टोटल वेट अब तुम निकाल सकते हो, राइट, ये कितना आया 5.6, 5.6. तो मोल कॉन्सेप्ट जो लगाया तुमने उसके हिसाब से भी 5.6 आया, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से भी 5.6 आया, तो इसका मतलब कि ये जो है लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट, क्योंकि Yes, मैंने मोलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगाया निकाला तो 5.6 आया है, और यहाँ पे अगर ये वैल्यू ऐड करोगे 1.5 प्लस 5.6, तो ये दोनों रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। अब ये क्लियर है Yes, sir. सभी को? Yes, sir. ओके, आदित्य आवाज आ रहा है मेरा? आदित्य राइट, और सारे बच्चे बोल नहीं रहे थे, केवल प्राची और मानवीन का ही आवाज आ रहा है, राहुल अमृता नहीं आ रहा आवाज, वो पिंग भी मुझे चैट में भी पिंग भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बातें आज मैं आपको तथ्य तर्क और सबूतों के साथ बताऊंगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ओके, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, ठीक है, लगाने वाले मुझे चैट पे या मैं बाद में बात करेंगे, ठीक है, नहीं तो होपफुली समझ में आ रहा हो सब लोग, राइट, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे चैट पे भी पिंग कर सकते हो।
ओके ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, पूरा क्लियर है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन कुछ किए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसमें अगर देखोगे कि यहाँ मान लो कोई भी कंपाउंड है और वो हमेशा ठीक है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमेशा उनका जो उनके जो वैल्यूज होते हैं यहाँ पे ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे जैसे मान लो एक कोई मॉलिक्यूल है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मान लो ये ऑक्सीडेशन से बन रहा है। एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, दूसरा प्रोसेस है मान लो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, दोनों में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, मतलब जैसे कॉपर और ऑक्सीडेशन का जो रेशियो है हमेशा सेम रहेगा कॉपर ऑक्साइड में, चाहे तो ऑक्सीडेशन होके बने, ऑक्सीडेशन होके करे या रिडक्शन हो, दोनों में प्रोपोर्शन सेम होगा। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज अगर कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे क्या मिल रहा है हमें, कॉपर मिल रहा है, यहाँ पे कॉपर मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, और वैसे ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर और ऑक्सीजन होके कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हमें कैसे प्रूव करते हैं, ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे मान लो 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर है और 2.7 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड है, सही बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो होता है कि सेकेंड तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने लगाया है यहाँ पे, और हम लोगों ने ये फाइंड किया कि ऑक्सीजन का मास है 0.54 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो रेशियो कॉपर और ऑक्सीजन का होगा 0.54 अपॉन 2.16 इट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ 4.1। तो ये क्या कहता है कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, तो मतलब सब इंटीजर वैल्यू आएगा और एक डेफिनेट रेशियो में होता है, 4:1 के रेशियो में होगा या 8:1 के रेशियो में होगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन इसमें हमेशा फॉलो होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, अब डेफिनेशन को एक बार देखते हैं हम लोग, irrespective of source it will always contain a same proportion of element by weight। मतलब कि अगर कॉपर ऑक्साइड है तो किसी तो भी तरह से बनेगा, लेकिन उसका वेट का रेशियो एक प्रोपोर्शन में होगा, या तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन कुछ बन रहा है, या कोई डिफरेंट रिएक्शन से भी अगर बने, लेकिन फाइनल जो उसका रेशियो है दोनों का सेम होगा। मतलब Fe और S आयरन और सल्फर है, ये मान लो दो डिफरेंट रिएक्शन से ये बन रहा है कंपाउंड, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा जो कि हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इज इट क्लियर कि क्या है होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? कि मान लो अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड बन रहा है AXBY, ठीक है, अब ये सपोज डिफरेंट दो रिएक्शन, दो तरह का रिएक्शन है, लेकिन फाइनल जो बन रहा है AXBY। AXBY हमेशा X is to Y
हमेशा सेम रहेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ओके, x is to y will always remain constant. तो x is to y का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा. यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. इज इट क्लियर? मतलब दो रिएक्शन, दो तरह का डिफरेंट रिएक्शन से अगर कोई बन रहा है कंपाउंड, तो दोनों x is to y will always remain constant. Okay, Manvin, is it clear? Okay, wait, let me unmute one by one. Manvin, is it clear? Yes, sir. Clear, right? Yes, sir. Clear. Okay, good. तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है कि जिस तरह से भी रिएक्शन हो, लेकिन फाइनल जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स है उनका रेशियो हमेशा सेम रहता है. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन के थ्रू ट्राई कर रहा था, पहले कोई क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल समझा दूं ताकि क्या होता है समझ आए. कि जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन है. ठीक है. तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है 2.7. तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि दोनों का एक डेफिनेट रेशियो होता है. तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑक्सीजन का जो मास निकाला था वो 0.54 था. तो दोनों तब जब देखेंगे रेशियो क्या है, तो रेशियो हमेशा 4:1 है. 4:1 के रेशियो में ही हमेशा इसका रिएक्शन होगा. ठीक है. यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का जो हमेशा जो रेशियो होगा 4:1 का रेशियो होगा. अगर अब हम लोग अब देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है. ठीक है. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और अगर NO बन रहा है और कोई NO2 बन रहा है, N2O3 बन रहा है, N2O5 बन रहा है, कोई बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, राइट. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन. तो अगर ये डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि जो ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो एक डेफिनेट when two element combine to form more than one compound, तो क्या होता है कि जो अदर एलिमेंट है उसका रेशियो हमेशा एक होल नंबर होता है. अदर एलिमेंट बोले तो, या जैसे इस केस में अदर एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है, तो अदर एलिमेंट ऑक्सीजन को मैं ले रहा हूँ. तो ऑक्सीजन का जो वेट है वो एक होल नंबर होगा ऑलवेज. अब यहाँ पे जैसे मान लो N2O है. N2O के केस में एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का पता है क्या होता है. नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14. तो N2 का कितना हो जाएगा 28. ठीक है. तो N2O के केस में हो गया 28 और ऑक्सीजन का वेट क्या है होता है एटॉमिक वेट 16, राइट. तो N2O का हो गया, यहाँ पे वेट ऑफ नाइट्रोजन 28 है, यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 है. अब NO के केस में जैसा होता है 14 और 16. तो अगेन यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड लगाया तो यहाँ पे इसको हमने 28 बना दिया, तो ये 16 ऑटोमेटिकली 32 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे N2O3 के केस में क्या हो जाएगा 28 और O3 हो जाएगा 48, राइट. O3 का 3 into 16 48. तो सिमिलरली यहाँ पे 28:64. तो अभी ये देखोगे कि जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है 16:32 ये एक होल नंबर आएगा हमेशा. तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहा है ना, और जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है, अगर एक एलिमेंट को फिक्स वेट रखोगे तो दूसरे जो एलिमेंट है उसका जो वेट आएगा एक फिक्स रेशियो में आएगा. Are you clear? Manvin, is it clear to you? Let me unmute you. Yes, sir.
Okay. प्राची, is it clear to you? प्राची, Yes, समझ sir. आ रहा है ये कि इसमें होता क्या है कि अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे N2O3 बन रहा है और N2O5 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक का वेट फिक्स रखना पड़ेगा। तो एक को वेट फिक्स रखोगे तो दूसरे का वेट जब निकालोगे तो फिर यहाँ पे एक होल नंबर के रेशियो में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे N2O के केस में ये 28 हो गया, ये 16 हो गया। NO के केस में ये 14 होता है, नाइट्रोजन को 14 होता है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया 20 यूनिटी मेथड लगा के 28 किया, तो यहाँ पे 32 हो गया। तो ये क्लियर है, राइट? तो यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इस पे हम भी क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन से पहले एक और लॉ हम पढ़ते हैं, गायल-लुसिक लॉ, ठीक है, गायल-लुसिक लॉ। और इसमें जिस सेकंड ना, सेकंड जैसे कि मैं 1 सेकंड। या मुझे कौन था लीव है। तो ये गायल-लुसिक लॉ क्या होता है, ठीक है। तो वी आर कमिंग टू नाउ गायल-लुसिक लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन का ये क्या बोलता है कि हम लोग जैसे ये यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इस जिस रेशियो में मोल है उस रेशियो में वॉल्यूम भी बनता है। मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन का 1 लीटर क्लोरीन का क्या देता है, 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है कि जैसे मैंने बताया कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन दे डू इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम का भी एक रेशियो होता है। तो यहाँ पे 1 लीटर अब ये वॉल्यूम का भी जो रेशियो होता है, तो इट्स क्लियर, राइट। मतलब अगर अगर ये कोई रिएक्शन बोल रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो 1 लीटर हाइड्रोजन का 1 लीटर क्लोरीन का क्या देता है, 2 लीटर ऑफ HCl। पुराने कोई न्यूमेरिकल में अगर हम देख रहे थे, तो अगर यहाँ पे भी कोई अगर हम ये रिएक्शन भी अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल वाटर का क्या देता है, 1 मोल ग्लूकोज का 1 मोल ऑक्सीजन का। मतलब 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 1 मोल ऑफ वाटर गिव्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 लीटर ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो
प्रोवाइडेड क्या बोला है ये, व्हेन गैसेस कंबाइन, तो ये दोनों गैसेस के फॉर्म में होना चाहिए और ये भी गैस के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये होता है हमारा दूसरे लॉ। ठीक है, सॉरी, क्लियर है ये? या मानवेंद्र, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो और प्राची क्लियर है ना? Yes, sir. ओके गुड। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन मैं देता हूँ अगर कि हाइड्रोजन या क्लोरीन मिलके 2HCl दे रहे हैं, तो एक 40 ml ऑफ हाइड्रोजन है, कंबाइन करता है, रिएक्ट विद क्लोरीन, देन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस HCl, ये निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताओ। ठीक है, think and tell me what is the answer of this question. I think Sorry? A 4080. Okay, Manveen? मानवीन, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मानवीन, मानवीन, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मानवीन को नेटवर्क में। तो एनीवे करेक्ट, इसका आंसर है 4080। ठीक है, तो ये